کے لیے اس پرستش کے لیے تاکہ خداوند ہمارے درمیان میں موجود ہو۔ قدوس 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 رب الافواج، لشکروں کے خدا، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، بحر و بر کے خالق اور مالک آسمان تیرے باپ کا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند تیرا بڑا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، تجھے مبارک، تجھے دھنیہ واد کہتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا سچا اور زندہ خداوند ہے، تو ہی پاک خداوند ہے، تو ہی بھلا اور غیور خداوند ہے۔ تیری آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی کیونکہ تو پاک ہے۔ اے باپ آسمانی، ہمیں بھی پاک بنا تاکہ ہم تیرے لائق ٹھہر سکیں، تیرے پسندیدہ بیٹے بیٹیاں کہلا سکیں۔ اے باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے سارا دن سے اب تک ہمیں سنبھالے رکھا، اپنی حفاظت، اپنی رہنمائی میں رکھا۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس خوبصورت محفل کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جو تیرے بیٹے بیٹیوں نے خداوند خدا آرگنائز کی ہے۔ باپ آسمانی، ان کو بڑی برکت بخشنا، اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بلیس کرنا اور بڑی برکت دینا زندہ خداوند۔ ہم دوستائش کرنے کے لیے خداوند خدا اپنے بچوں کو تیار کرے۔ باپ آسمانی، ساز و آواز تیری برکت کو، تیری بلیسنگ کو مانگ لیتے ہیں۔ اے باپ آسمانی، ان سب کو سنا خداوند خدا، ان کی آوازوں کو بلیس کر۔ اے باپ، جب خداوند خدا کی ہم دوستائش کی جائے تو تیرے حضور میں بخور کی مانند پہنچے اور خداوند خدا ان کی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملے۔ اے باپ آسمانی، میٹنگ کے شروع سے آخر تک ہم سب کا مددگار ہونا خداوند خدا، ہمارا گیت گانا، پرستش کرنا تجھے پسند آئے اور تیرے نام کو جلال ملے۔ اے باپ آسمانی، کلام پڑھنا، دعا کرنا خداوند خدا تجھے پسند آئے۔ آج کا خداوند خدا کلام ایک ایک زندگی کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اے باپ آسمانی، یہ جتنی تیرے بیٹے بیٹیاں یہاں پر آئے ہیں خداوند خدا، تیرے کلام کو سیکھ کر جائیں خداوند خدا، یہاں سے اپنی برکتوں کو ریسیو کر کے جائیں۔ اے باپ آسمانی، ان سب کو بڑی برکت بخشنا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا خداوند خدا، یہ ہمیشہ تجھ میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ ننھے بچے خداوند جتنے آئے ہیں ان سب کو اپنے میں بڑھنے کا بڑا فضل بخشنا۔ اے باپ آسمانی، ان پر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، ان کے خداوند خدا ایجوکیشن میں ان کی بڑی مدد و رہنمائی کرنا، ان کے ذہنوں کو روشن کرنا خداوند خدا، تاکہ یہ تعلیمی میدان میں بڑھتے چلے جائیں اور تیرے کلام میں بھی بڑھتے چلے جائیں، تیری راہوں پر چل کر تیری دیدار کے طالب ہو سکیں اور بڑی برکت بخشنا، ان کے پیرنٹس کو بڑی برکت بخشنا۔ اے باپ، تاکہ وہ ان کے لیے خداوند خدا تعلیمی میدان میں ان کی بڑی مدد کریں خداوند خدا، اور ان کی تعلیم و تربیت تیرے کلام کے مطابق کرنے والے بن سکیں اور خداوند خدا یہ سب تیرے حکموں پر عمل کریں اور تیرے مطابق چلنے والے بن سکیں، تاکہ اے باپ آسمانی تیرے پسندیدہ بیٹے بیٹیاں کہلا سکیں۔ اے باپ، تو ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تو نے ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ بنایا ہے۔ اے باپ آسمانی، ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں اور خداوند خدا کا جواب دینا، بڑی برکت بخش دینا، مسیح یسوع کی قادر جلالی اور فتح مندان میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویا۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور مکمل طور پر اس کے حضور دعا کرنا سٹارٹ کریں گے۔ ہاللیلویا۔ قدوس رب الفاج، کل کائنات کے خالق اور مالک، آج ہم جب جلال سے بڑے خدا تیری ہم دوستائش کریں، جہاں تک لگے جلال سے بڑے خدا، تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اے یہوہ پاک خدا، جب تیرا بندہ کلام سنائے تو جلال سے بڑے خدا تو اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال کرنا۔ ہاللیلویا، پریز جیسس۔ اے خدا پاک روح، آج جنبش تو کرے، چھولے ہر زندگی، خالی دامن بھی بھر سکائیں گے۔ اے خدا پاک روح، آج جنبش تو کرے، چھولے ہر زندگی،
کھلے مردہ دل بھی جلا اندھی آنکھیں کھلے مردہ دل بھی جلا تو ہے قادر خدا اپنی قدرت دکھا تو ہے قادر خدا اپنی قدرت دکھا اپنی قدرت دکھا آج تجھ پر لگی ہر بشر کی نظر جھولے ہر زندگی خالی دامن اے خدا پاک بچہ تو ایسا بچے بھی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں سب بچے جتنے یہاں پر موجود ہیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں ہاللویا 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 پانی پانی پہ تھی سب زندہ خدا کی تمجید کرنا شروع کریں یہ خدا بڑا ہے خدا عظیم ہے پانی پانی پہ تھی جیسے جنبش تیری انبیاء پر بھی تھی روح کی بارش تیری انبیاء پر بھی تھی روح کی بارش تیری روح کی بارش تیری وہی بارش تو کرے وہی جنبش تو کرے شعلے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر اے خدا پاک آج جنبش تو کرے جھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھرے ہاللویا 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 آئے ہم سب اس بات کا اقرار کریں گے مانتا ہوں سبھی اپنی کمزوریاں یہ سب اقرار کریں گے ہاللویا مانتا ہوں سبھی اپنی تیرے پیڑ میں کیڑے ہیں وہ بند کر کے بیٹھ جا ابھی ہو رہا ہے نا مانتا ہوں سبھی نہیں میں نہیں جا رہی اپنی کمزوریاں ڈالتے جاتے ہیں بخش دے اے خدا اپنی شہزوریاں بخش دے اے خدا اپنی شہزوریاں اپنی شہزوریاں میری آنکھوں کو دے آج اپنا سر جھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر اے خدا پاک روح آج جنبش تو کرے کیا حال ہے اس کا جھولے ہر زندگی جسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو جلال کا بادشاہ ہے اور تو اپنے وعدہ کے مطابق یہاں پر تخت نشین ہے کیونکہ تو نے وعدہ کیا جہاں دو یتیم میرے نام پر جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا اور آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو اپنے وعدہ کے مطابق یہاں پر موجود ہے میں ان تمام زندگیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے اپنے وقت کی قربانی خداوند تیری حضوری میں گزرانی ہے خدا باپ ان تمام بچوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو برکت دے خدا اور آج خداوند ہمیں روح اور سچائی سے پرستش کرنا سکھا تاکہ ہم تیرے ایسے پرستار بنے جو تیری پرستش روح اور سچائی سے کرے کیونکہ تو ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے
खुदा बाप इस सारी इबादत में तो हमारा हामी और नासिर है ना, इसके वसीला से जलाल सारा तेरे नाम को मिले और तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ मिलकर तेरी हमदो सताइश करें और खुदा बाप सारा इज्जत हम खुदा तेरे ही नाम को देते हैं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आए हम इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर 18 गाएंगे, आप ही ऊपर हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ये ज़बूर सबको आता है, सबने मिलकर गाना है। हालेलुया। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। पानी विचों मैनू डूंगे, पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। ये गीत किस किस को आता है? सभी को आता है, सबने मिलकर हमारे साथ। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही। अब कब बैठोगी? इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ।
वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मुझको सांप ले जा, मुल्क के नाम को पहुंचा। यशवा उठो सांप ले जा, मुल्क के नाम को पहुंचा। जहाँ जिंदगी तेरे बाहों का गलबा, जहाँ जिंदगी तेरे बाहों का गलबा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तेरे कदमों को पहुंचा, रहूंगी नरक मजबूत हो जा। तेरे कदमों को पहुंचा, चाहे घर कोई जाने, वो जरा मैं कभी रह सकता। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। कलाम से ना भाई मुड़ना, तेरे कलाम से ना भाई मुड़ना, तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना। हो जाएंगे कोई लोग ये सारे, मैं दुनिया को मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे कोई तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तेरे भी साथ रहूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। अब इसको मसीह के जलाल के लिए जोरदार। मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे भी, सब बड़े भी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, और मैं गीत गाऊंगा। इसी के दौरान आप खुदावंद की हजूरी को महसूस करें कि उसका तख्त हमारे यहाँ पर लग चुका है। हालेलुया। हर मुश्किल दा हल यसू कोल, हर मुश्किल दा ये नहीं आता। हल, हर मुश्किल दा हल यसू Sorry. कोल, हाँ, good. हर मुश्किल दा हल, हर मुश्किल दा हल यसू कोल, हर मुश्किल दा हल। मेरा यसू वड्डा है, मेरी मुश्किल छोटी। मेरा यसू वड्डा है, मेरी मुश्किल छोटी। के हार के बैठिया है, मेरी किस्मत खोटी। सच्ची गल नू जान ला बंदिया, दर यसू दा मल। सच्ची गल नू जान ला बंदिया, दर यसू दा मल। हर मुश्किल दा हल यसू कोल, हर मुश्किल दा हल। जे दिल दी कुंडी अंदरों खोले, जे दिल दी कुंडी अंदरों खोले, घर आ जाओ यसू जे मुंहों बोले। घर आ जाओ यसू जे मुंहों बोले। उस वेले सुने यसू नहीं कहेगा आकल। उस वेले सुने यसू नहीं कहेगा आकल। हर मुश्किल दा हल यसू कोल, हर मुश्किल दा हल। आइए सब अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे।
सब मिलकर दुआ करना शुरू करेंगे। खुदा आज मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, मुझसे कलाम कर, क्योंकि जब तू बोलता है तो मुर्दा लाज़िम कब्र में से बाहर आ जाता है। जब तू बोलता है तो ये दुनिया वजूद में आती है, क्योंकि जब खुदा कलाम करता है तो वीरान जगह को खुदा सब्ज और शदाब बना देता है। आपकी वीरान जिंदगी खुदा सरसब्ज और शदाब करने को है, क्योंकि उसके बोलने से हम बरकत पाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है, और उसका कलाम हर एक धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। उसका कलाम ला तब्दील है, उसका कलाम जो है वो असर रखता है। आइए उसी कलाम को मांगे, चंद लम्हात के लिए दुआ करना शुरू करें। खुदा से कहें, खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी को यकसर बदल दे। आज मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज मैं तेरी हजूरी में तेरी बरकत को लेने को आया हूँ, और मैं जानती हूँ कि बरकत तेरे कलाम में है, तेरे मुंह की बातों में है, तेरे अहकामात में है। खुदा बाप, आज जब मैं तेरे अहकामात को, तेरे कलाम को सुनूं तो खुदावंद मैं बरकत पा जाऊं, मेरा घराना बरकत पा जाए। और जो भी मौजज़ा की आप तलाश कर रहे हैं, आए इससे पहले कि आप दुआ में खुदा से मांगे, खुदा से उसके कलाम को मांगे। जब आप खुदा के कलाम को मांगेंगे तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में उस मौजज़ा को, उस बरकत को, उस बहाली को शामिल पानी में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिसने रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। सब मिलकर दुआ करें, हालेलुया। खुदावंद यहाँ पर तक नशीन है कि वो इस्राएल की हमदो सना पर तक नशीन होता है, वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे यहाँ पर आ जाने के लिए खुदावंद तेरा तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर
अपने में है खुदा बंदा। आइए सब अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। कदूस नासमाई बाप, आप जो थे जो हैं और जाने वाले हैं आए बाप, तेरा शुक्र करते हैं लोगों को मोट पड़ी हुई है। इस जमायत के लिए खुदा बाप। आए बाप, तेरा कलाम है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। Eyes close कर। इस ईमान से कि तू हमारे दरमियान मौजूद है आए बाप। आए बाप, हम तेरे आगे सर लगू हैं खुदावन बाप। खुदावन बाप, हमारा खुदावन बाप दुआ करना, प्रस्तुत करना, कलाम पढ़ना आए बाप, तेरे सामने मखलूक की मानत पहुँचे आए बाप। आए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज़ाद किया है, हर बला से तूने हमें आज़ाद किया है खुदावन बाप। और मसीह यस्सु ने हमें वो इख्तियार दिया खुदावन बाप कि हम उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकें खुदावन बाप। आए बाप, हम मसीह यस्सु के नाम से जो मांगते हैं खुदावन बाप हमें मिलता है। ये हमारा ईमान है खुदावन बाप। और खुदावन बाप, मैं इस वक्त तेरे कलाम के लिए तुझसे दुआ करती हूँ। आए बाप, ये कलाम हर एक की ज़िंदगी में रूह गूदे गूदे बन में गुजरे आए बाप। और खुदावन बाप, मैं दुआ करती हूँ खुदावन बाप कि तेरा कलाम हमारे दिलों में ना कि खुदावन बाप सिर्फ सुने खुदावन बाप, बल्कि तेरा कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े आए बाप। और खुदावन बाप, ये जो हमारा मकसद है यहाँ पे इकट्ठे होने का खुदावन बाप, उस मकसद को तेरे हजूर में रखते हैं और खुदावन मकसद पूरा हो आए बाप। आए बाप, मैं इस वक्त इस कलीसिया को तेरे हजूर में देती हूँ, एक एक फर्द को तेरे हजूर में देती हूँ, उसके दिल, उसके दिमाग और उस रूह को खुदावन बाप, हॉली स्पिरिट को खुदावन बाप मैं वेलकम करती हूँ आए बाप। आए बाप, मैं वेलकम करती हूँ एक एक बच्चे के खुदावन बाप दिलों में खुदावन बाप ये कलाम ठहर जाए खुदावन बाप और जड़ पकड़े खुदावन बाप। तेरा रूह खुदावन बाप, हमारा पाक रूह उस कलाम को हम हमेशा पानी देता रहे और खुदावन बाप, और हम लोग एक पिलर की तरह खड़े हों आए बाप। आए बाप, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप, इस कलाम के लिए। और खुदावन बाप, मैं इस भाई के लिए दुआ करती हूँ और खुदावन बाप, जब ये हमें कलाम डिलीवर करें आए बाप, तो खुदावन बाप हर रूह उसको कबूलियत की तरह खुदावन बाप कबूल करे आए बाप। आए बाप, ये सब कुछ मांगते हैं और पाते हैं मसीह यस्सु के नाम से जो सब नाम में से आला है, आमीन। उनकी सलामती हम सबों पर हो। कितने लोग खुश हैं? प्रस्तिश के वसीला से कितने लोगों ने बरकत को हासिल किया? हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम उसके सुंदर चरणों में बैठ सके, उसकी हमदो सताइश कर सके, उसकी प्रस्तिश कर सके। इसके बाद मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉल्कन्स ऑफ गॉड ऑर्गेनाइजेशन, जो सारे विजन को लेकर इस मुल्क के अंदर खुदा के कलाम के वसीला से खुदा के लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका बख्शा कि हम खुदा की जिंदा ला तब्दील लासानी कलाम की खिदमत उनके इस प्लेटफॉर्म के वसीला से बहुत सी जिंदगियों में कर सके। इसके साथ साथ आप सबों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप सब जो है वो वक्त की कुर्बानी देते हैं और खुदा को अव्वल दर्जा देकर अपने कामों को छोड़कर खुदा की हजूरी में आते हैं। तो हम इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि आज बहुत से लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ा को, बरकत को, ब्रेक थ्रू को, बहाली को, कामयाबी को, सरफराजी को के इंतज़ार में हैं, और जो लोग स्टक हो चुके हैं, मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से उनकी ज़िंदगियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि खादमीन नहीं बल्कि खुदा का कलाम असर करता है। और मेरा ईमान है ये जिंदा कलाम है और आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा, इन बच्चों की ज़िंदगियों को बदलेगा और इस ऑर्गेनाइजेशन को खुदा और ज़्यादा सरफराजी और कामयाबी देगा। आए मेरे साथ निकालिए कलाम खुदा में से यिर्मयाह की किताब, उसका पहला बाब, इसकी 5वीं आयत और 5वीं आयत हम देखेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, किया मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। हम सब कह सकते हैं आमीन। मेरे अजीजों,
खुदा यहाँ पर अपने बंदा यिर्मयाह से कलाम करता है और यिर्मयाह से कहता है इससे बेहतर कि मैंने तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया। तुझे पहले से मैंने मखसूस कर दिया कि तू कौमों के लिए नबी होगा। वो कहते हैं इससे पहले कि मैंने तुझे खलक किया, इससे पहले के बतन में तेरी रूह आती, तेरी माँ के बतन में तेरी रूह आती, मैं तुझे पहले से जानता हूं। मेरे अजीजों, हमारा इस दुनिया के अंदर जो सफर है वो 20 साल का हो सकता है, वो 25 साल का हो सकता है कोई 40 साल का हो गया, कोई 60 साल का, कोई इससे छोटे बच्चे यहां पर बैठे हैं 10 साल का, 4 साल का, 1 साल का, लेकिन हमारा वजूद बहुत पहले से खुदा के पास है। खुदा हमें पहले से जानता है। खुदा जानता है कि किस खानदान के अंदर, किस बहन के बतन में किस बच्चा को जो है वो परवान चढ़ाना है। और खुदा की नजर में हम पहले से मौजूद हैं और हमारी रूह खुदा के पास पहले से एग्जिस्ट करती है, यानी कि वजूद रखती है। हमारी रूह खुदा के पास पहले से वजूद रखती है और वो रूह जो है वो खुदा हमारी मां के बतन में भेजता है और उसके बाद हम 9 माह के बाद इस दुनिया में जब अपनी आंखों को खोलते हैं तो खुदा इससे पहले हमारे लिए एक मंसूबा रखता है। और खुदा ने यिर्मयाह के लिए एक मंसूबा रखा। एक मंसूबा खुदा का होता है, एक मंसूबा फिर इंसान का अपना होता है। क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में जब देखते हैं तो खुदा का मंसूबा था कि आदम को जब उसने मिट्टी से बनाया तो आदम को उसने जो है वो बाग अदन के अंदर रखा और फिर हवा को उसकी पसली में से निकाला। तो खुदा ने उनके लिए एक मंसूबा रखा। खुदा ने उन्हें एक मंसूबा और अपनी मर्जी पर जाहिर की और मंसूबा उनके लिए क्या था कि ये इस बाग में रहे और बड़े फले और जमीन को ममोर हो और ये हलाक ना हो, बल्कि ये हमेशा इसी तरह इस बाग पर इन सारी चीजों पर इख्तियार रखे। और खुदा ने एक मर्जी और एक हुक्म की शरीयत जो है वो आदम को दी कि तू इस बाग के सारे फलों को खाना, लेकिन इस दरख्त के फल को ना खाना। अगर तू खाएगा तो तू मर जाएगा। तो वो क्या करता है? वो खुदा की मर्जी को जानकर भी, खुदा के मंसूबा को जानकर भी, खुदा के प्लान को जानकर भी वो क्या करता है? वो अपनी फ्री विल पावर को यूज करता है और उस एक हुक्म की शरीयत को वो तोड़ देता है और वो अपनी मर्जी से उस फल को खा लेता है। और जब खाता है तो मौत उसकी जिंदगी में आ जाती है। उसकी जो है वो मौत जब जिंदगी में आती है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा का मंसूबा, खुदा की मर्जी हमें जिंदगी देने में है। खुदा का मंसूबा, खुदा की मर्जी हमें बरकत देने में है। खुदा का मंसूबा, खुदा की मर्जी हमें सिर्फ राजी, कामयाबी और बढ़ता हुआ देखने में है। बाज़ों का गलतियां कुछ हमारी अपनी होती हैं और हम कहते हैं खुदा की मर्जी। आदम को खुदा ने पहले से बता दिया था कि मेरी मर्जी ये नहीं कि तू हलाक हो जाए, मेरी मर्जी ये नहीं कि मौत तुझ पर आ जाए, मेरी मर्जी ये नहीं कि तू मर जाए, मेरी मर्जी ये है कि तू फले बढ़े, तरक्की करे, कामयाबी हासिल करे और सारी चीजों पर तेरा इख्तियार हो। लेकिन आदम क्या करता है? खुद गलती करता है। इसी तरह आज मैं और आप भी खुदा की मर्जी को, खुदा के मंसूबा को छोड़कर जब हम उसके जो सिमत है, उसके जो रास्ते हैं उनसे दूर जाते हैं तो हमारी जिंदगी में जो है वो नाकामियों का सामना हमें करना पड़ता है। चाहे वो एजुकेशन के अंदर, चाहे वो कारोबार के अंदर, चाहे वो बिजनेस के अंदर, चाहे वो मैरिड लाइफ के अंदर, जब हम खुदा की मर्जी को छोड़कर, खुदा के प्लान को छोड़कर और खुदा की मर्जी को जाने बगैर जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। और बाज़ औक़ात फिर लोग बड़े जो है वो कहते हैं कि नहीं ये तो खुदा की मर्जी थी। खुदा की मर्जी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं मेरी अपनी मर्जी उसमें शामिल थी, जिस वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका, मैं नाकाम हुआ, मुझे जो है वो नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खुदा की मर्जी नहीं थी कि मेरा जो है वो मैरिड रिलेशन जो है वो खराब हो, लेकिन मेरी मर्जी थी कि मैंने खुदा की मर्जी को जाने बगैर उस अपने लिए बीवी को चुना या बीवी ने शोहर को चुना। बाज़ औक़ात हम खुदा से गिला करते, खुदावंद यही मर्द मेरे लिए रह गया था। मर्द गिला करते खुद, क्या मेरे लिए यही औरत रह गई थी? ऐसा नहीं है। जब हम खुदा से पहले पूछते नहीं और जब सारा जो है वो हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं तो हम खुदा पर गिला करते हैं। हम खुदा से कहते हैं खुदा ये क्या किया,
لیکن اس سے پہلے ہم نے خدا سے نہیں پوچھا اے خدا تیری مرضی کیا ہے, اے خدا تیرا پلان کیا ہے, اے خدا تیرا منصوبہ کیا ہے, کیونکہ خدا ہمیشہ اپنی مرضی واضح طور پر انسان پر ظاہر کرتا ہے, اور انسان کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ اس میں میرے خدا کی مرضی نہیں, اسے سکون نہیں آتا, اس کا ضمیر اس کو سکون نہیں دیتا, روح قدس اسے تحریک نہیں دیتا کہ تو یہ کام کر, لیکن پھر بھی ہم انسان ہوتے ہوئے بعض اوقات بڑی ڈٹھائی سے وہی کام کرتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس میں میری مرضی شامل ہے, کیونکہ اس میں میرا منصوبہ شامل ہے, کیونکہ اس میں میرا جو بینیفٹ ہے, میرا جو فائدہ ہے وہ شامل ہے. ہم بائبل مقدس میں اچھی مثالوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور بری مثالوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بائبل مقدس خود اپنے کلام کو جو ہے وہ پروف کرتی ہے, اس کو کسی دوسری کتاب کا سہارا لینا نہیں پڑتا. بائبل مقدس کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس شہر کو ہلاک کروں, میں پھر بھی انہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میری آواز, میرا کلام, میری شریعت وہاں تک تیرے وسیلہ سے پہنچے. اور وہ گالیاں دیں گے, ایذا رسانی کریں گے, وہ پتھر ماریں گے, وہ ایسی چیزوں کو سوچ رہا تھا. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ خدا کی مرضی کو جان کر بھی, خدا کے منصوبہ کو جان کر بھی وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے خداوند سنانا تو تیرا کلام ہے, نینوا نہیں, میں ترسیس جا کر تیرا کلام سناؤں گا تجھے. تو یہی چاہتا ہے کہ میں تیری خدمت کروں, خدمت یہاں پر نہیں بلکہ میں ترسیس میں جا کر. اور وہ کیا کرتا ہے, جہاز میں سوار ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ خدا کے منصوبہ اور مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور منصوبہ کی طرف آگے بڑھتا ہے, تو کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ طوفان وہاں پر آ جاتا ہے. جس کشتی میں, جس جہاز پر وہ سوار ہے, طوفان اٹھ جاتا ہے. اور ایک شخص کی نافرمانی سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر جتنے اس جہاز میں, اس کشتی میں سوار تھے لوگ, وہ سارے اس طوفان کے وسیلہ سے ڈوبنے لگے. پھر انہوں نے قرعہ بھی ڈالا کہ کس کی وجہ سے یہ طوفان ہے, اور قرعہ بھی اسی کے نام کا نکلا, اور اس نے کہا کہ مجھے پانی میں پھینک دو. لیکن اس کے باوجود کہ وہ پانی میں پھینک دے, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کشتی کو, جہاز کو جو ہے وہ کنارے پر لے جائیں, لیکن وہ کنارے پر نہیں جا رہے. اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر بھی کوئی شخص جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے, خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتا, خدا کے منصوبہ کو پورا نہیں کرتا, تو وہ اپنے ساتھ ساتھ پورے گھرانے کی تباہی کا باعث بنتا ہے. وہ طوفان تب تک نہیں تھمتا جب تک یا تو وہ شخص آپ سے دور چلا جائے, یا تو وہ شخص خدا کے منصوبہ میں آ جائے, یا پھر آپ اسے اپنے سے دور کر دے. وہ طوفان نہیں تھمتا. اور یونا کو جب پھینک دیا گیا, کشتی میں سکون ہو گیا, لیکن یونا جو ہے وہ مصیبت میں چلا گیا, یونا موت کے منہ میں چلا گیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بڑی مچھلی نے اسے اپنے اندر نگل لیا. ایک بڑی مصیبت اس پر آن پڑی, کیونکہ وہ خدا کے منصوبہ پر نہیں. کشتی میں توبہ کرتا تو خدا نے کشتی میں سے بچا لینا تھا, لیکن تب تک اس نے توبہ نہیں کی. اس نے کہا مرنا گوارا ہے, لیکن وہاں پر جانا گوارا نہیں. بعض اوقات ہم بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں, خداوند یہ کام میری مرضی سے ہوگا, میں تیرا منصوبہ نہیں پورا کرنا, میں نے کرنی اپنی مرضی ہے. اور یونا کیا کرتا ہے, مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے, جب مچھلی سے نگل لیتی ہے تو 3 دن جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے. پھر آخر میں اسے سمجھ آتی کہ میں مر بھی نہیں رہا اور اس میں سے باہر بھی نہیں نکل رہا. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ ہماری لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہم مصیبتوں سے باہر بھی نہیں آ رہے ہوتے, اور مصیبتیں ختم بھی نہیں ہو رہی ہوتی, اور ہم مر بھی نہیں رہے ہوتے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس سے اچھا ہے, اس بیماری سے بہتر ہے میں مر جاؤں, اس مصیبتوں سے بہتر ہے میں مر جاؤں. لیکن آپ کو موت بھی نہیں تب تک آئے گی جب تک آپ خدا کی مرضی کو, اس کے منصوبہ کو پورا کر کے اس دنیا سے نہیں جائیں گے. یونا 3 دن کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ میں تو خدا کی مرضی کو نہیں پورا کر رہا, اس لیے میں اس مصیبت میں ہوں, نہ میں نکل رہا ہوں نہ میں مر رہا ہوں. پھر وہ یونا خدا سے کہتا ہے, دعا کرتا ہے, میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور خداوند نے میری سنی. اور جیسے وہ دعا کرتا ہے تو مچھلی کو خدا حکم دیتا ہے, اور وہ مچھلی جو ہے یونا کو خشکی پر اگل دیتی ہے. اور جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پھر اس نے اپنی مرضی دوبارہ نہیں کرنے کی کوشش کی, پھر وہ چال پڑا نینوا کی طرف. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں, اور جیسے خدا ہمیں نکال دیتا ہم پھر کہتے ہیں ہم پھر اپنی مرضی کریں گے, اور پھر ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اور اکثر اوقات میرے پاس فیملیز آتی ہے, وہ ایک مصیبت سے نکلتے پھر کہتے ہیں پاس اب دوسری مصیبت آ گئی ہم پر, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر نہیں کر رہے تھے, خدا کے پلان کو وہ اپنی زندگی میں پورا نہیں کرنے دے رہے تھے, خدا کے منصوبہ کو وہ اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دے رہے تھے, اور اپنے منصوبے انہوں نے بنائے ہوتے. ہم بھی منصوبے بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کا منصوبہ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, یا کوئی کہہ دیتے ہیں پہلے سے یہ خادم بنے گا. بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم خدا سے نہیں پوچھتے خداوند تیری اس بچے کے لیے کیا مرضی ہے. ہم یہ بھی نہیں پوچھتے خداوند میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے.
क्या सिर्फ तूने मुझे इसलिए भेजा कि मैं 60-70 साल इस दुनिया में रहकर वापस तेरे पास आ जाऊं, या कोई और मंसूबा भी तेरा मेरे लिए है? और बहुत से लोग मंसूबा के जाने बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं, और खुदा की मर्जी और मंसूबा के बगैर अपनी जिंदगियों को बसर करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो एक बड़ी ही जो है वो बड़े ही धोखे के अंदर है, क्योंकि वो अपनी जिंदगियों को वेस्ट कर रहे हैं। जो जिंदगी, जो घराना, जो चर्च, जो कलीसियाएं खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करती, वो खुदा के मंसूबा से फिर निकल जाती हैं, वो खुदा की निजात के मंसूबा से भी निकल जाती हैं। खुदा की मर्जी ये है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज भी बहुत सी जिंदगियों पर खुदा का ये मंसूबा है कि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, लेकिन वो जिंदगियां खुदा के बेटे यीशु को कबूल नहीं करती और वो अपने गुनाहों के अंदर मर जाती है और वो निजात भी नहीं पाती। योना फिर नैनवा गया, और जब नैनवा पहुंचता है तो योना मुनादी करता है, योना कलाम सुनाता है और खुदा की मर्जी को पूरा करता है। तो जब मर्जी को पूरा करता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह तक, हाकिम तक और वहां के जानवर और वहां के लोगों ने टाट ओढ़ लिए, रोजे रखे और खुदा की हुजूरी में आजिज हो गए, इंकसारी में आ गए और खुदा के मंसूबा को भी उन्होंने बदल दिया। जो मंसूबा खुदा बना चुका था कि इस शहर को मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन उनकी आजिजी और इससे पहले योना की नाफरमानी के बाद फरमाबरदारी उस शहर को बचा लेती है। एक शख्स की फरमाबरदारी पूरे शहर को बचा गई, पूरे शहर को खुदा अपना मंसूबा बदल लेता है। खुदा कहता है अब मैं इसे हलाक नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मेरी हुजूरी में खाकसार हो गए। सोचें, एक जिंदगी जो है वो क्या कर सकती है। एक जिंदगी पूरे शहर को बचा लेती है, एक जिंदगी पूरे शहर के लिए बाइश बरकत बन गई, एक जिंदगी पूरे शहर के लिए सरफराजी का बाइस बन गई, एक जिंदगी जब खुदा की फरमाबरदारी करे तो पूरा शहर उसके वसीला से गुनाहों से निकलकर खुदा की निजात के मंसूबा में शामिल होकर बहाल हो जाता है। ये है जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, और जब हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं तो हमेशा याद रखिएगा हम नाकाम रहते हैं। हम खुदा की मर्जी को पूरा जब नहीं करते तो हमारी जिंदगी के अंदर आगे रुकावटें आती हैं। याद रखिएगा, जब आप खुदा की मर्जी पर, खुदा के मंसूबा पर चल रहे होते हैं तो रुकावटें फिर भी इब्लीस लगाता है, लेकिन उन रुकावटों को खुदा खुद रिमूव करता जाता है, क्योंकि खुदा को पता है कि मेरा ये फलां बंदा, ये फलां बेटी, ये फलां बेटा मेरी मर्जी को पूरा कर रहा है और मैंने इसकी रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करने। लेकिन जब आप खुदा की मर्जी पर नहीं होते तो आपकी जिंदगी में रुकावटें आती है और वो हटती नहीं। आप कहते हैं ये तो पहाड़ मेरी जिंदगी से हट नहीं रहा, ये तो मुसीबत मेरी जिंदगी से नहीं जा रही, ये तो बीमारी मेरी जिंदगी से नहीं जा रही। और बड़े लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो अपनी मर्जी को छोड़कर जब खुदा की मर्जी में अपनी मर्जी को शामिल करते हैं तो खुदा ने बरकत, बहाल और पहले से बढ़कर सरफराज करता है, पहले से बढ़कर खुदा उन्हें बरकत देता है। और याद रखिएगा, हमेशा हम समझते हैं हमारे पास 10 साल का हमारे लिए प्लान है, हमारे खानदान के लिए, हमारे घराना के लिए, हमारे बच्चों के लिए 10 साल का प्लान है, 5 साल का प्लान है, 20 साल का प्लान है, या पूरी जिंदगी के बारे में हमने प्लान बनाए होते हैं। याद रखिएगा, इससे बेहतर प्लान आपके लिए आपके खुदा के पास है। अपने उस मंसूबा को खुदा के मंसूबा में दें, अपनी उस मर्जी को खुदा की मर्जी में दें, अपनी उस जो है वो जिद को खुदा की मर्जी में शामिल कर दें और सरेंडर कर दें, अपने आप को आजीज कर दे, अपने आप को खाली कर दे और कहे खुदा मेरी जिंदगी में, मेरे घराना में, मेरे खानदान में और मेरे चर्च में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम दुआए रवानी में तो कहते हैं कि जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी, लेकिन हम पूरी होने नहीं देते, ना अपनी जिंदगियों के अंदर ना अपने खानदानों के अंदर। हम कहते हैं हमारी ही मर्जी जो है वो पूरी हो, हमारे खानदानों के अंदर भी, हमारी जिंदगियों के अंदर भी और हमारे चर्चिस के अंदर भी। तो जब हम मर्जी को पूरा नहीं होने देंगे तो याद रखिएगा हमारा दुआए रबानी पढ़ना भी जो है वो फायदामंद नहीं है। और हम इसकी मिसाल अगर देखें, खुदावंद यीशु खुदा का बेटा जब इस दुनिया में आया तो उसे जो है वो मारा जा रहा था, उसे सलेब दी जा रही थी और वो जानता था कि खुदा बाप की मर्जी ये है कि मैं सलेब को उठाऊं और सलेब पर अपनी जान दूं। और उसने दुआ भी की कि ऐ खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।
तो इससे बेहतर हमें मिसाल मिलती नहीं। वो मौत को गले लगा रहा है, वो ये नहीं कह रहा खुदावंद इस मौत को हटा ही दे। हम बाज़ औक़ात एक चीज के लिए दुआ करते जाते यहाँ तक कि हमारा अपना ईमान जो है वो कमजोर हो जाता है। कहते खुदावंद तू तुम्हारी दुआ सुन ही नहीं रहा, साल हर साल से हम दुआ करें, लेकिन हम ये नहीं कहते जो हमारे खुदावंद ने एक मिसाल कायम की कि खुदावंद अगर ये काम तेरी मर्जी में है तो हो जाए, अगर नहीं तो फिर तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने कहा तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सबसे बड़ी मर्जी वो जानता था कि खुदा चाहता है, उसका बाप चाहता है कि मैं सलीब पर अपनी जान दे दूं और मर जाऊं। मरने से भी बढ़ के उसने कहा कि तो भी तेरी मर्जी पूरी हो। अगर तू चाहता है कि मैं मरूं तो मैं तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। और उसने पेश किया, लेकिन खुदा ने जब उसने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में शामिल किया तो खुदा ने भी फिर उसे मुर्दा नहीं रहने दिया, बल्कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने अपनी मर्जी को पूरा करके तीसरे रोज मेरे और आपके अब्दी बादशाह को मुर्दों में से जिंदा किया। और आज वही हमारी जिंदा उम्मीद है, क्योंकि हमारा ईमान किसी मुर्दा पर नहीं बल्कि जिंदा मसीह पर है। और आगे ईस्टर आने वाला है, तो बहुत से लोग ईस्टर पर सिर्फ यीशु मसीह को जिंदा करते हैं। नहीं, आपका यीशु हर दिन, हर वक्त, हर सेकंड जिंदा है। आप उसे पुकारें और अपनी मुसीबत से कहें कि तू मुझसे बड़ी नहीं, मेरे यीशु से बड़ी नहीं, क्योंकि मेरा यीशु बड़ा है, मेरा यीशु जिंदा है जो मेरी फिक्र करता है। और उसने कहा मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। और उसने वो हमें नामों से जानता है, वो नाम लेकर हमें बुलाता है और वो हमसे प्यार करता है, और खास तौर पर बच्चों से प्यार करता है। और बच्चों से कहता है कि जब उसके शागिर्द डांटते हैं कि बच्चों को कि बच्चे उनके पास ना जाएं, तो वो कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। तो जितने यहाँ पर बच्चे हैं वो जब खुदावंद यीशु के पास जाते तो खुदावंद यीशु आपसे नाराज नहीं होते, बल्कि आपसे खुश होते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो मेरे पास आई है। और फिर वो अपनी मर्जी, जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं तो याद रखिएगा फिर हम उसकी मर्जी को जानकर उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। तो आज का कलाम यही है कि खुदा जैसे यिर्मयाह के लिए एक मंसूबा रखता है, और खुदा जब यिर्मयाह से कहता है इससे पेशतर कि मैंने तुझे माँ के बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता हूँ, मैंने इससे पेशतर कि तू इस दुनिया में आता, मैं पहले से तुझे कौमों के लिए नबी मुकर्रर किया, मखसूस किया। खुदा ने मेरे और आपके लिए बहनों, बेटियों और बच्चों, खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए भी एक मंसूबा रखा हुआ है। आज हमें अपनी मर्जी करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे पास तो पूरा जिंदगी का प्लान हमारे खुदा के पास है। हमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, हम पूरी जिंदगी का प्लान बनाएं। बस खुदा से हर दिन, हर सेकंड उसकी मर्जी को, उसके प्लान को लें और उस पर चलते जाएं। खुदा आपको, आपके खानदान को, आपके घराना को और आपके वसीला से आपकी चर्च को और आपकी कौम को और आपके मुल्क को और इस पूरी दुनिया को बरकत देगा, अगर आप उसके मंसूबा और मर्जी को पूरा करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आए चल नमाज के लिए दुआ करेंगे। और मैं चाहता हूँ जितने लोग आज से पहले अपनी मर्जी कर रहे थे किसी भी काम के अंदर, और वो काम आपका अभी तक नहीं हुआ, आज दुआ करके जाए। मेरा ईमान है जब आप अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में शामिल कर देंगे और कहेंगे खुदा ये काम मेरी जिंदगी में मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ा अपने आप को रुपया पैसा लगाया, मैंने सोर्स को इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी जो है ये काम मेरी जिंदगी में नहीं हो सका। ऐ खुदा अब मैं इस काम को तेरे हाथ में देता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है वो इस मेरी जिंदगी में और मेरे घराना में पूरी हो। अगर आपका कोई बेटा बेटी कोई काम करना चाहता है, आप उसके लिए खुदा की मर्जी को मांगे। तो याद रखिएगा जब आप खुदा की मर्जी में शामिल कर देंगे तो वो कोई काम आपका जो है वो नाकाम नहीं होगा। आए दुआ करना शुरू करें, अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद करें और मुकम्मल तौर पर अपने आप को ताबे कर दें और खुदा यीशु मसीह की तरह कहे तो भी ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आसमानी बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन सारी जिंदगियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, खुदा बाप इन बच्चों के लिए। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम जिंदगियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बाप मैं ईमान रखता हूँ कि जितने लोगों ने आज तेरी आवाज को सुना और तेरे तरह के बंधनों को, जुओं को तोड़ दिया है, और खुदा तूने इनको बहाल किया है, तूने इनके खानदानों को बहाल कर दिया है, तूने इन्हें बीमारियों से आजाद किया है। आसमानी बाप हम तेरे शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। इन सारी जिंदगियों को बरकत दे, इनके वसीला से इनके खानदान, इनके घराने बरकत पाए, इन बच्चों को बरकत दे, इस सारी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले बहनों भाइयों को बरकत दे। खुदा इस खानदान को बरकत दे जिनके वसीला से तेरा कलाम खुदा बहुत सी जिंदगियां सुन रही हैं और बिलखुसूस तेरे बच्चे सुन रहे हैं। खुदा
हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस खानदान के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं, इस सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं, इनके सारे फाउंडर्स, चेयरमैन और जितनी खुदावन टीम है, वॉलंटियर, खुदावन सब बरकत पाए यीशु के नाम से। और आसमानी बाप उस खुराक पर भी तेरी बरकत चाहते हैं जो तूने अपने खजाना से हम सबों के लिए खुदावन रखी है। खुदावन उस खुराक पर भी तेरी बरकत, सबको बरकतों से पाक कर, और जिन वसाइल से है उन वसाइल को पर तेरी बरकत है, उन वसाइल को बढ़ा यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जब हम सब अपने घरों में जाएं तो अपने खानदानों के लिए बाइस से बरकत हो, और जो अनॉइंटिंग मस्सा यहाँ से लिया है खुदावन, जिन जिन रास्तों पर जाए खुदावन उन रास्तों से तरीकी का जोर टूटता जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे बाप जो आसमान में, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर जमीन पर है। हमारे रोज की रोटी आज मिले, जिस तुम अपने कर्जदारों को माफ कर, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़्ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाज़िर जमात और इन घरानों के साथ, इन जिंदगियों के साथ, बच्चों के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इस खानदान के साथ और हम सबों के साथ अब से वदा को दीजिए। बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में।